Yes, students, will talk about DNA replication. We have already studied in live class, but some other factors, other points are here. We have to discuss here. So, DNA replication, we know that synthesis of DNA to DNA, and this is semi-conservative in nature. Means one strand would be old and one strand would be new in, we can say, daughter DNA. This is synthesized in S phase of cell cycle. If you talk about the time of replication, E. coli takes 18 minutes to divide. If you talk about size of the, we can say, genome of E. coli, then this is 4.6 into 10 की power 6. Okay, so we can say per second about 2000 nucleotide are added by the DNA polymerase. If you talk about yeast, it takes 40 minutes. If you talk about mammalian cell, then it takes approx 8 hours. It's not, we can say, exactly 8 hours, just taken from data anywhere, not like we can say the timing of DNA replication is different in different kinds of cell and different kind of tissue and different kinds of mammals. Okay, so if you talk about the size of human genome, then this is about 3.3 into 10 power 9. This is the haploid content. Diploid होगा 6 into 6.6 into 10 is 9. Okay, so this is for haploid, this is for diploid. If you talk about DNA polymerase, so DNA polymerase is very fast enzyme with high accuracy. If there is any mistake during replication, that would lead to the mutation. Okay, DNA also function as repair. That means if there is any we can say mismatch, then it also repair the newly synthesized DNA. If you talk about the raw material, then here the raw material are DNTPs. Okay, we can say deoxyadenine, guanine, cytosine, thymine. Okay, so they perform dual role. एक रोल क्या है? They acting as substrate का, we can say raw material का काम करते हैं. Second, जो DNTP है, ये जो ब्रेक होगा तो ये टूटेगा DAMP में. ओके, ये रिलीज करेगा PPI और वो फिर फर्दर ब्रेकडाउन होगा, रिलीज करेगा एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. क्लियर है? तो डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस है, डीएनए टू डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, एस फेज में E. coli takes 18 मिनट. दिस इज गिवन इन NCERT. Polymerase very fast, high accurate. If there is any we can say mistake, lead to mutation, and DNTPs perform two role. One is acting as substrate, second is provide energy for the polymerization. Clear है? Now DNA is semi conservative, and now if we talk about prokaryotic DNA, then we can say this is the circular. If you talk about eukaryotic DNA, then this is the linear DNA, and this DNA is very long. Okay, so there is a particular place in a DNA from where replication start, and that site is known as ORI. That is known as ORI. ORI mean origin of replication. Mean origin of replication. The size of genome in E. coli is small है, तो उसमें एक ही ओरी होता है. बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए द साइज इज वेरी वेरी लॉन्ग है, तो इसमें क्या होता है? मल्टीपल ओरी साइट्स होती है. क्लियर है? नाउ the DNA is double stranded. Okay, and if we need to replicate it, then very first we have to open both the strands. Without the opening of both strands, we cannot add new nucleotides in this. So this is the DNA. Okay, there is an enzyme known as, मैं इसको सीधा बना रहा हूं ऐसे, थोड़ा सा ये डबल स्टैंडर्ड है ऐसे पॉइंट. देयर इज ए एंजाइम known as heligase.
that is known as helicase. Which open both the strand, open करेगा, opens both the strands. Okay, we can say as we open the zip, जैसे थोड़ी थोड़ी जिप ओपन होती है वैसे ये ओपन होगा जिपर की तरह. This helicase will not, we can say, open A to Z DNA, we can say starting to last DNA, because this is very energy, we can say, expensive process. तो ये धीरे धीरे उसको खोलेगा. Now when it opens a DNA, we can say double strand of DNA, so there is a formation of Y-like structure, and this Y-like structure is known as replication fork. Okay, so one enzyme here is helicase. Then to prevent rebinding of both the strand, there is another, we can say, a factor that is known as SSB, यानी कि single strand binding factor. There is another protein which prevent, we can say, formation of this duplex, DNA duplex. तो वन एक हो गया हेलिकेस, सेकंड इज SSB. अब क्या होगा, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ दिस हेलिकेस, जैसे ही पीछे खुलेगा तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, वी कैन सी, सुपर कॉइलिंग. ये पीछे से और ज्यादा उलझ जाएगा. तो यहां पर एक और एंजाइम होता है दैट इज नोन एज टोपो आइसोमेरेज, एंड दिस इज नोन एज गायरेज इन प्रोकैरियोट्स. ओके, दीज एंजाइम्स आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन समझने के लिए करना है. नाउ सी, दिस इज द 5 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, तो ये होगा 3rd स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. क्लियर है? सो हियर ए रेप्लिकेशन फॉर्क, SSB, हेलिकेज, टोपो आइसोमेरेज. नाउ कम टू डीएनए पॉलीमरेज. इसको दोबारा बनाता हूं दूसरे एंगल से. फाइव प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम. ओके, हियर द बोथ द स्ट्रैंड आर नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. दोनों को क्या बोलते हैं? टेम्पलेट. टेम्पलेट मीन जिसपे सिंथेसिस हो रहा है. तो यहां पर क्या हो गया, वी कैन सी हियर देयर इज हेलिकेज, टोपो आइसोमेरेज, SSB. क्लियर है? नाउ कम टू डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज always start DNA synthesis from 5 prime to 3 prime of new strand, यानी कि it will move only 5 prime to 3 prime of new strand, यानी कि we can say this is a old strand, तो ये मूव करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ से, यानी कि ये 3 है तो इसके साथ यहां पर बनेगा 5, ऐसे. क्लियर है? तो यहां से शुरू होगा, यहां पर खत्म होगा एक स्ट्रैंड का. बट अदर प्रॉब्लम इज दिस, क्या है कि इट रिक्वायर्स 3 प्राइम OH ग्रुप फॉर एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड, एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड. इज सेइंग आई वांट समथिंग टू ऐड ए न्यू, दैट मीन्स किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं. ठीक है, ऐसा समझो. अब देखो, फॉस्फेट बेस 5 प्राइम 3 प्राइम है.
तो ये पॉलीमरेज कह रहा है कि इफ समवन विल गिव मी a 3 prime free OH group then I will add a new nucleotide। तो ऐसा कैसे होगा? तो ये तो कर नहीं सकता, तो अब क्या होगा? There is another enzyme that is known as primase or RNA primase। ओके, ये RNA primase क्या करेगा? This will add a short sequence of RNA। यहां पर ये एक छोटा सा सीक्वेंस ऐड कर देगा RNA का। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। ओके, एंड दिस शॉर्ट सेगमेंट ऑफ RNA 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड के लगभग होता है, एंड दिस शॉर्ट स्ट्रैंड इज नोन एज RNA प्राइमर। RNA प्राइमर। अब देखो, एक न्यूक्लियोटाइड के साथ यहाँ 5 प्राइम है, यहाँ पर कौन सा है? 3rd प्राइम है, यानी कि इस साइड इसके पास बच गया OH। क्लियर है? तो जो डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए था वो आ गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अब इसको सो हियर डीएनए पॉलीमरेज विल कम, ओके, और वो नया स्ट्रैंड बना देगा यहां से आगे ऐसे। ये लो, क्लियर है? तो दिस स्ट्रैंड, यानी कि इन दोनों में से एक स्ट्रैंड है, दैट वुड बी रिमेन कॉन्टिन्यूअस। यहां तक आया, पीछे से और खुलेगा, फिर आगे चलेगा, और खुलेगा, फिर आगे चलेगा, और खुलेगा, फिर आगे चलेगा। बट इन दिस स्ट्रैंड, polarity of this strand is 3 prime to 5 prime। But according to DNA polymerase, that is saying कि I always move from 5 prime to 3 prime, that is of new strand। तो इसके साथ जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, तो वो 5 प्राइम कौन सा होगा उसका? यहां पर, दैट मीन्स ये होगा उसका 5 प्राइम, और इस साइड कौन सा होगा? 3 प्राइम, फिर आगे से 5 प्राइम, फिर 3 प्राइम। अब देखो क्या होगा, इतना डीएनए ओपन हुआ, here primer will come, ओके, यहां पर 3 प्राइम OH आया, फिर इसने क्या सिंथेसाइज किया? टीएनए। ये लो, डायरेक्शन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बट व्हाट हैपन इन नेक्स्ट साइकिल, यानी कि जैसे ये पीछे खुलेगा, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये पीछे और खुल गया और ये पीछे ऐसे चला जाता है यहां तक ऐसे, ये था ओल्ड सेगमेंट। तो अब ये क्या करेगा? दिस प्राइमर विल कम हियर, और फिर ये ऐसे सिंथेसाइज होगा। तो इस तरह से क्या होगा? करते करते देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए और फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, एंड दीज फ्रेगमेंट्स आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। साइंटिस्ट का नाम था, उस पे है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, तो दिस स्ट्रैंड वुड बी डिस कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। क्लियर है? बात आई समझ में? एक और भी नाम है इसका, इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। Here we can say लीडिंग मतलब कंप्लीटली कर रहा है, लैगिंग मीन्स डिसकंटिन्यूअस है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे। बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है उनको सील कर देगा एक एंजाइम है, दैट इज नोन एज डीएनए लाइगेज। तो दिस लाइगेज विल सील दीज फ्रेगमेंट, और इसको भी वापस क्या कर देगा? कॉन्टिन्यूअस कर देगा। बात आई समझ में? अब इसकी समरी देखो। अब मैं दूसरी डायरेक्शन से बना रहा हूं।
Okay, so here is 3 prime 5 prime 3 prime 5 prime। तो ये होगा लीडिंग यानी कि कॉन्टिन्यूअस, ये होगा डिसकॉन्टिन्यूअस और वी कैन से लैगिंग। तो यहां पर क्या आएगा, हेलिकेज, देन SSB, देन टोपोआइसोमेरेज और गायरेज। यहां पर आएगा RNA प्राइमर, नेम ऑफ एंजाइम इज प्राइमेज। फिर यहां पर आएगा DNA पॉलीमरेज। अब यहां पर जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, जितने भी ओकाजाकी सेगमेंट्स बनेंगे, उन सब सेगमेंट्स के साथ RNA का प्राइमर होगा, ऐसे। क्लियर है? तो ये हो गए ओकाजाकी fragments, and one more enzyme will seal these Okazaki fragments is known as DNA ligase। क्लियर है? अब क्या होगा कि ये जो प्राइमर है, दिस प्राइमर विल रिमूव्ड, ये रिमूव हो जाएगा, रिमूव्ड बाय DNA पॉलीमरेज। ओके, तो ये जो जगह है, मान लिया ये इतना लंबा DNA है और इसमें 4 जगह से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हुआ, एक यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से। तो ये जब DNA पूरा घूम के ऐसे वापस इस जगह पे आएगा, तो इसको पीछे से वापस क्या कर देगा, फिल कर देगा इस बची हुई जगह को। इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, यहाँ से हटेगा पीछे से आके फिर हो जाएगा, यहाँ से हटेगा पीछे से आके फिर फिल हो जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें है, इसमें क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल में ये जो गैप है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी समरी है सारी। एंड बोथ द स्टैंड्स आर नोन एज वी कैन से टेम्पलेट। क्लियर है? तो लीडिंग, लैगिंग, हेलिकेज, SSB, टोपोआइसोमेरेज, प्राइमेज, DNA पॉलीमरेज, ओकाजाकी फ्रेगमेंट एंड लाइगेज। क्लियर है? So this is all about the process or application of DNA. ठीक है? In online class we studied about the transcription unit के promoter कहाँ होता है, structural gene कहाँ होता है, terminator कहाँ होता है, and why both strand are not transcribed, we can say in the form of mRNA. Only one strand take part in transcription. Okay, so we know that the genes are the part of DNA एंड वो जो फंक्शनल पार्ट है डीएनए का, जिसको हम जीन कहते हैं, वो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन सिंथेसाइज करता है दैट इज वी कैन से नेसेसरी फॉर नेक्स्ट जनरेशन और नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द सेल भी हम कह सकते हैं। तो जीन है द सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच कोड फॉर और कोडिंग फॉर mRNA, rRNA और tRNA। डिफरेंट काइंड्स ऑफ RNA है, mRNA, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, tRNA हम देखेंगे इसके बाद। तो एक टर्म है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन का मतलब क्या है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। अब देखो, जो mRNA है सिर्फ वो ही क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है। तो सिस्ट्रॉन टर्म यूज करते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड ओनली फॉर पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड बनता है mRNA से। ओके, बट जो जीन है वो mRNA, rRNA और tRNA सारे बनाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट सिस्ट्रॉन। तो दिस कुड बी ऑफ टू टाइप, वन इज नोन एज पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन, अदर इज नोन एज मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। तो एज द नेम इंडिकेट पॉली, ये कंडीशन होती है प्रोकैरियोट में। इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रक्चरल जीन है हमारे पास, लाइक दिस इज द वन स्ट्रक्चरल जीन, इसके यहाँ पर प्रोमोटर है, यहाँ पर टर्मिनेटर है। तो मोर देन वन
kinds of polypeptide could be synthesized. So here we can say structural gene carry information for more than one polypeptide. तो एक ही स्ट्रक्चर we can say यूनिट के अंदर और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर many polypeptide synthesize हो, such condition is known as polycystonic. ऐसा होता है प्रोकैरियोट में, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक वेयर द कंडीशन इज मोनोसिस्टोनिक. मोनोसिस्टोनिक का मतलब क्या है कि वहां पर एक प्रमोटर होगा, एक टर्मिनेटर होगा, उससे एक ही पॉलीपेप्टाइड है जो सिंथेसाइज होगा. तो सच इज नोन एज मोनोसिस्टोनिक कंडीशन. ओके, तो कैरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर ओनली वन पॉलीपेप्टाइड. लेकिन यहाँ भी क्या दिक्कत है कि जो स्ट्रक्चरल जीन है दे हैव सम इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस. ओके, लाइक वी कैन से देयर आर सम सीक्वेंस विच इंटरप्ट द कोडिंग सीक्वेंस जो किसी काम की नहीं है. दैट मीन दे डू नॉट सिंथेसाइज द पॉलीपेप्टाइड. क्लियर है? तो ये जो लाइन है इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस है, ये लाइन इस डेफिनेशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करती है. ये क्या करे कि सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड. तो यानी कि ये सीक्वेंस भी हम एज इट इज एमआरएनए का नहीं कह सकते. थोड़ी सी अलग चीज पड़ जाती है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है. तो दैट मीन्स स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस है, दे आर नोन एज स्प्लिट जीन. यानी कि इन जीन्स को हम बोलते हैं स्प्लिट जीन. इसका मतलब क्या है कि यानी कि मेरे पास एक पूरा एमआरएनए जो सिंथेसाइज हुआ उसमें कुछ कोड ऐसे हैं, दैट मीन्स कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जो कोडिंग है और कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जो नॉन कोडिंग है. तो जो कोडिंग होते हैं दे आर नोन एज एक्सॉन्स और जो नॉन कोडिंग है दे आर नोन एज इंट्रॉन. यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं पहले एक्सॉन फिर इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन. तो ये इंटरप्रेट करते हैं कोडिंग सीक्वेंसेस को. क्लियर है? तो जीन सिस्टोन सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड देन पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट में है. मींस वन स्ट्रक्चरल जीन सिंथेसाइज मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड. मोनोसिस्टोनिक मींस सिंगल यूनिट सिंथेसाइज सिंगल पॉलीपेप्टाइड. और ये क्या होते हैं? इंटरप्रेट होते हैं विद इंट्रॉन्स. इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग है. इंट्रॉन्स कौन सा रीजन है? नॉन कोडिंग है. आगे देखेंगे हम कि इंट्रॉन कैसे आगे रिमूव हुए इसे. क्लियर? तो पॉलीपेप्टाइड कैसे बना, इज क्लियर और नॉट? अब थोड़ा सा आरएनए को देखो, बाकी बाद में करेंगे. नाउ टाइप्स ऑफ आरएनए. ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं पूछता हूँ पेपर में. सो टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप, फुल फॉर्म, परसेंटेज ऑफ टोटल आरएनए इन सेल, देन फंक्शन. फंक्शन कब? एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और वी कैन से ट्रांसलेशन. सो आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए. आरआरएनए मीन राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए मीन ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए मीन मैसेंजर आरएनए. ये वही राइबोसोमल आरएनए है जो क्या बनाता है? राइबोसोम्स बनाता है. जो क्या बनाता है? राइबोसोम्स बनाता है. ओके, सो इसका परसेंटेज है टोटल 80%, इसका है 15%, इसका है 5%. ओके, सो 18%, 15%, 5%. इसका रोल है दिस प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. कैटालिटिक मीन एक किसका काम करेगा? एंजाइम का काम करेगा. ओके, तो राइबोजाइम्स है वो, आगे डिटेल में आएगा. देन दैट मीन्स प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन और वी कैन से प्रोटीन सिंथेसिस. ये अमीनो एसिड को लेके आता है और रीड करता है जेनेटिक कोड को, और जो एमआरएनए है वो टेम्पलेट प्रोवाइड करवाता है. ये टेम्पलेट कैसे प्रोवाइड करवाता है, कैसे अमीनो एसिड को लेके आता है, जेनेटिक कोड क्या है और सर्जिकल कैटालिटिक रोल कैसे प्ले करता है, ये पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में. क्लियर है? तो ये टेबल ऐसे बनानी है और इसको एज तुम्हें याद करनी है. ओके, थैंक यू.